हाय गाइस, दिस इज द डे 4 इन सिंगापुर। और हमारा आज का मोटो है सिंगापुर फ्लायर पे जाना। एंड उसके बाद हम लोगों को जाना है गार्डन्स बाय बे। सो आज मैंने पहनी थी ब्लैक ड्रेस। एंड मैं अपने आप को काफी कॉन्फिडेंट भी फील कर रही थी इस ब्लैक ड्रेस में। एंड मैं चाह रही थी कि सिंगापुर के जो पीपल है वो मुझे नोटिस करें। एंड मेरे हस्बैंड से भी ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला। एंड उसके बाद हम लोग मेट्रो से उतर कर पहुंचे एक मॉल में। ये मॉल कनेक्टेड है जो मेट्रो स्टेशन से। एंड ये मॉल मुझे काफी अच्छा लगा एंड लग्जरियस लगा। तो यहाँ पे एक 3D एनिमेशन दिखाया गया है फ्लोर पर। एंड मुझे तो काफी बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये मॉल। एंड उसके बाद हमने थोड़ा मॉल में घूमे और एंजॉय किया। गाइस, यहाँ पे हम लोग आए मरीना बाय सैंड्स के मॉल में। तो यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं और खाने पीने का सिस्टम लगाया गया है। तो ये मॉल काफी बड़ा है। जब हम इस मॉल से बाहर निकलते हैं तो आइए, इस मॉल से बाहर निकलते ही इस मॉल से बाहर निकलने के बाद तो गाइस, दिस इज द आर्ट साइंस म्यूजियम। ये यहाँ पे म्यूजियम है आर्ट साइंस। तो यहाँ पे छोटी सी डेकोरेशन की गई है। अगर हमें क्रूज चाहिए तो क्रूज के लिए वहाँ पे लिखा हुआ है रिवर क्रूज वाटर। यहाँ से हमें क्रूज मिल जाएगी। और उस फ्लायर पे जाने के लिए हम लोगों को ये यहाँ से ये ब्रिज पार करना पड़ेगा। तो हम उस फ्लायर पे जाके अपना घूम सकते हैं। मॉल से बाहर निकलने के बाद हम लोग पहुंचे सिंगापुर फ्लायर के लिए। तो वहाँ पे जो हमें टिकट मिली थी वहाँ पे एक टाइम कैप्सूल की मिली थी और सिंगापुर फ्लायर की मिली थी। तो टाइम कैप्सूल बेसिकली हिस्ट्री बताता है सिंगापुर की। Welcome to the time capsule, a place beyond time. You've been programmed for a special mission to share Singapore's story with you. You are now at the gate to a timeless journey of your wildest imagination, filled with the most exciting memories from our travels. So, come get lost in time with me and let our adventures begin. Oh, wait, I forgot to introduce myself. I'm R65. Today, Singapore is a bustling multicultural metropolis. Have you ever wondered about the fascinating past beneath this glittering night sky? Beyond the razzle-dazzle of city lights, with the aspirations of one nation and the contributions of ordinary people through the generations. On an eventful journey shaped by time and times. Let's go back 700 years to the beginning of days on the island. What's that? The portal is opening. Let's go now. Welcome, island visitors, to Singapore. You've arrived in the year 1299. Did you know, just moons ago, Singapore was still known as Temasek? 'Twas the year I crossed paths with the Prince, Shah Mila Khan, who names the island after me, King of the Jungle. The sea. I still remember the day when the prince first sailed to the island shore.
struck by a heavy thunderstorm en route out at sea. At last, the skies cleared, and the prince led his men to safety along the riverbank. That's when we met. The prince fell in love with the beautiful island and decided to build his kingdom here. I watched over the first peoples of Singapore as they settled into two lively village towns. The locals were resourceful, and I saw commerce blossom as merchants far and wide came to trade in a rich variety of goods. And so, for generations, life flourished on the island. Seasons came to pass, bringing the people of Singapore the dawn of a new destiny. During the reign of the fourth king came the tale of a new. One day, swarms of swordfish pounced upon the island shores, killing many villagers. Even the king and his army were helpless against the deadly attacks. Then, a boy from the village came up with a brilliant idea of using banana skins to entrap the swordfish. The boy's name was Nadim. His wits saved the village people and made him a local hero. European forces began to arrive in the surrounded by deep and calm waters. Singapore has charted the destiny of a maritime nation from earliest history. Rolling trade between India and China first saw Singapore emerge as a major port of call, connecting key shipping routes in the Malay archipelago. Traders sailed from as far as Persia and Arabia, bringing goods of every kind and knowledge of new cultures. The promise of wealth from trade began to draw European colonial interest in Southeast Asia. From the 15th to 18th centuries, the Portuguese, Spanish, and French saw Singapore as a strategic gateway to the region. It was not until the year 1819 when Stamford Raffles struck a formal agreement with the local chief to establish a free trading post on the island. The signing of the 1819 Singapore Treaty led to a booming business, attracting the arrival of immigrants from all over the world in search of new opportunities.
work, and play. Together, we'll make our dreams come true. There's no time to lose. बचपन में जब हम लोग सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ते थे तो हम लोग को काफ़ी नींद आती थी, पर अगर हमें कोई बताता कि अगर उसी हिस्ट्री को हम लोग मूवी के थ्रू देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं होती है। एनीवेज, बट अभी जब मैंने ये सिंगापुर का जो पास्ट देखा, हिस्ट्री देखी कि सिंगापुर किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ सिंगापुर कंट्री, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इन लोगों ने एक मूवी के थ्रू हमें दिखाया एंड इन द बेसिस ऑफ कार्टून्स, यूजिंग द कार्टून्स कैरेक्टर्स इन्होंने हमको शो किया। तो चलते हैं अब सिंगापुर फ्लायर्स में, एंट्री की बारी है हमारी। सो गाइस, हम लोग बैठ चुके हैं सिंगापुर फ्लायर में। हमें यहाँ की टिकट पड़ी $80 की, जो कि टाइम कैप्सूल सिंगापुर फ्लायर दोनों की थी। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं सिंगापुर फ्लायर में। तो हम सिंगापुर फ्लायर के बिल्कुल टॉप पर हैं। यहाँ से पूरा सिंगापुर दिखाई दे रहा है। वहां पर दिखाई दे रहा है मैरीना बे सैंड्स होटल, और यहाँ से सारी बिल्डिंगें शो हो रही हैं और यहाँ से समुद्र दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये पूरा ही सिंगापुर हम सिंगापुर फ्लायर से देख सकते हैं। तो यह है इतना ब्यूटीफुल सा नज़ारा। जब हम लोग सिंगापुर फ्लायर में बैठे तो हम लोगों ने ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे मैरीना बे सैंड्स होटल्स एंड ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं हम लोगों को काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही थी। एंड ये इस आर्ट साइंस म्यूजियम एंड ये रिवर काफ़ी अच्छे से हम ऑब्जर्व कर पा रहे थे, और हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मानो आज मैं ऊपर आसमान नीचे। सो यहाँ से पूरा सिंगापुर हमें काफ़ी सुंदर शो हो रहा है। एंड ऑब्वियसली हम लोगों ने एक रील भी रिकॉर्ड की थी, लाइक उस वाले गाने पे डीडीएलजे का गाना है वो, जाती है तू कहाँ जाने मन जाने जा, लड़की है तू खूबसूरत लड़का मैं नौजवान। सो वो रील आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगी, और रील्स के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने व्यू काफ़ी इंजॉय किया एंड ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सारी पिक्चर्स भी क्लिक करवाई, हम लोगों ने भी छोटी छोटी क्लिप बनवाई। अभी देखो ये सिंगापुर फ्लायर के टॉप से ये हमें सिंगापुर समुद्र कितना अच्छा शो हो रहा है, और समुद्र के बीच में एक क्रूजेज भी शो हो रहे हैं। गाइस, यहाँ से गार्डन बाय बे बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा है पूरे सिंगापुर के टॉप पर होने के बावजूद। देखो, यहाँ से हम सारी चीजें देख सकते हैं। सो सिंगापुर फ्लायर के बाद हम लोग गार्डन्स बाय बे में जाएंगे और उसमें नाइट में भी रुकेंगे क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा शो होता है। अभी हम लोगों ने कर लिया है एग्जिट सिंगापुर फ्लायर से। एग्जिट लेने के बाद हम लोगों को यहाँ पे ग्रीनरी शो हो रही है, तो मुझे ये काफ़ी बहुत अट्रैक्टिव लगी। एंड हम लोगों ने एंट्री ले ली है गार्डन्स बाय बे में। एंड यहाँ पे देखिए, गार्डन्स मीन्स नाम से ही हमें प्रतीत हो रहा है कि ये ग्रीनरी से रिलेटेड है। तो नेचर्स लवर सिंगापुर में आए तो गार्डन्स बाय बे में जरूर आए। एंड सिंगापुर में काफ़ी लाइक हॉट वेदर था, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो मैंने एक ठंडी चॉकलेट शेक लिया एंड आगे हम चल पड़े ऑब्जर्वेशन के लिए। सिंगापुर में ये शाम के 6 बज चुके हैं, तो हम लोग आए हैं गार्डन्स बाय बे में। तो यहाँ पर उधर साइड फ्लावर्स बाय डोम, वहाँ पे टिकट मिलती है, वहाँ पे जा सकते हैं। एंड यहाँ पर ये क्लॉक है, फ्लोरल क्लॉक, तो आप देख सकते हैं। और इधर साइड अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर है सुपर ट्री ग्रोव। तो यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए टिकट्स अवेलेबल हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप टिकट परचेज कर सकते हैं। और जिसको नेचर पसंद है, नेचर्स में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए ये चीज बहुत अच्छी है, गार्डन्स बाय बे।
अभी थोड़ी देर में शाम होने वाली है एंड शो स्टार्ट होने वाला है गार्डन्स बाय बे का। हम लोग शो देख ही रहे थे कि बहुत तेज बारिश आने लगी शो के बीच में, तो हम लोगों को शो अधूरा छोड़ के आना पड़ा। एंड हम जिस रास्ते से आए वो एकदम मैरिना बे सैंड्स होटल की तरफ जाता है एक ब्रिज के थ्रू। एंड फिर हम लोगों ने ब्रिज के पास रुककर सिंगापुर को नाइट में ऑब्जर्व किया एंड ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था सीरियसली। एंड बहुत ज़्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल, एंड मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ऊपर से बारिश हो रही थी तो हमने काफ़ी इंजॉय किया और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी रियली। तो ये है मैरिना बे सैंड्स होटल एंड ये भी कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे ये ब्रिज है जिसके थ्रू आई मीन एग्जिट होता है गार्डन्स बाय बे से मैरिना बे सैंड्स होटल के थ्रू हम लोग एग्जिट करते हैं। और आई मीन लाइक जो भी मैरिना बे सैंड्स होटल में लोग रहते हैं वो डायरेक्ट गार्डन्स बाय बे में ब्रिज के थ्रू आ जा सकते हैं। सो ये होटल काफ़ी कॉस्टली है, सो हमारे बजट से बाहर है, तो हम लोग इसको दूर से देख सकते हैं। तो ये था आज का दिन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।